Hello, dear students. Welcome back to the online digital platform of Nalanda Vidyalay. I welcome you, all of you, to the third part or third session of our 6th standard SS Civics part, chapter number 24, Local Self-Government, Rural and Urban Administration. I hope you all are fit, fine and healthy. Dear students, we have completed chapter number 24, part 1 and part 2, in which part 1 we have learned about the rural administration. Okay, the Panchayati Raj system, 3-tier Panchayati Raj system, in which we have learned, yes, Jilla Parishad at district level, block or Panchayat Samiti at the block level, means taluka level here, and at the very grassroots level ग्राम पंचायत समिति, ओके, एट विलेज लेवल, जिसे हम ग्राम सभा जिससे हम करते थे, और उसके बाद जो सरपंच जो हमने बात की थी वो थी. देन इन द सेकंड पार्ट वी हैव लर्न अबाउट द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड नगर पालिकास. अगेन इन अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट they are also means that system is the administration system is divided into 3 different tier systems. Number 1, municipal corporations, means big cities like Ahmedabad, Mumbai, Chennai, okay, Delhi. So more than the population of 10 lakhs, these are called big cities, जिसे हम महानगर पालिका भी कहते हैं. Okay, so there we have municipal corporations. Then smaller cities, or we can say the population is less than 10 lakhs, they are called, okay, small towns, on we can say medium cities or small and medium towns and cities, in which we have municipalities and municipal councils, okay, at that level. Then okay, smaller than the, we can say smaller towns and smaller cities, okay, we can have the population of under the 1 lakh also, so city council or nagar panchayats, okay, at that kind of, okay, semi urban localities, okay, city councils and nagar panchayats are there. So students, we have completed the content part in 2 parts. Part number 1 is all about the rural local self-government, and part number 2 is all about the urban local self-government. Now this is the third part, and here we will try to complete the explanation of the exercise part. Okay, all the exercises of our chapter number 24, okay, starting with the MCQs, then true false, short answers, okay, one line answers, okay, answer in brief and answer in detail. So starting with the first MCQs, take the correct option. First one, the 3 levels of the local self-governing body at the rural level are, they are village, block and district. Okay, please remember, just 2 minutes ago we have revised, okay, what are the 3, okay, or we can say the 3-tier Panchayati Raj system, okay, at the 3 level is village, block and district level. So answer is A. Number 2, a FAD is a means, yes, document which shows the name of the owner of the land. Okay, एक डॉक्यूमेंट है जो ओनर है लैंड का वो दिखाता है, ओके, जो पटवारी और हम कहेंगे कि जो हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर जो होते हैं, वो उन्हें हम कह सकते हैं कि हैंडल करते हैं, ओके, मैनेज करते हैं. नंबर 3, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय दी, यस, प्लीज रिमेंबर, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर. अब म्यूनिसिपल कमिश्नर की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेट के अंदर की बात होती है, ओके, तो उसे स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है. प्लीज रिमेंबर, ओके, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट. A ward is a, yes, a ward is an area in municipal corporation where serious cases are addressed. No, answer is a division in the city for the purpose of elections. Both the answers are very very similar, but answer is B, a division in the city for the purpose of elections. जो वार्ड है ना, वो एक डिवीज़न है सिटी का, ओके, जो हमने इलेक्शन के पर्पस के लिए, ओके, उसे हमने वार्ड में डिवाइड कर दिया जाए, और एक वार्ड पे हम कह सकते हैं कि एक जो मेंबर होता है वो इलेक्ट होके आता है, ओके, जिसे हम काउंसिलर्स कहते हैं. नंबर 5, द मेंबर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन आर, यस, द मेंबर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन आर इलेक्टेड बाय एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द सिटी. यस, इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द सिटी. यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉरपोरेशन की, ओके, मेंबर्स ऑफ अ कॉरपोरेशन. सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे सिटी की बात हो रही है, जो टाउन और सिटी जो होते हैं डेवलप्ड अर्बन एरिया हियर. सो इलेक्टेड बाय द एडल्ट सिटीजन्स ऑफ सिटी.
of the city. So these are the MCQs. Now state, okay, question number 2, state whether the following statements are true or false. Rewrite the statements to correct them. So starting with the first one is, the city council is also known as the Nagar Panchayat. It is absolutely true. City council को नगर पंचायत भी कहते हैं. Number 2, the Jilla Parishad functions for a period of 3 years. It is false. Okay, the Jilla Parishad functions for a period of 5 years. Don't worry, you are thinking that yes sir is not showing the answers. Answers are here only, okay, in this file only. So you will get all the answers, no problem, but I am, okay, explaining the answers here only. Number 3, another name for the mayor is Mukhia. So it is false again, and it can be corrected in 2 ways. Another name of the mayor is Mukhia. No, another name of the mayor is, yes, it is written here also. Another name of the mayor is Mahapaur. Okay, and another name of the Mukhia is Sarpanch, जिसे हम सरपंच कहते हैं at district level. Okay, sorry, at village level in that rural local self government. Then the alderman can only be nominated. The alderman can only be nominated. Yes, it is true. उन्हें सिर्फ नॉमिनेटेड ही किया जाता है. ओके, नॉमिनेट कौन होते हैं? वो नॉमिनेटेड वो होते हैं रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ऑफ द सिटी. ओके, उन एरिया के जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन होते हैं उन्हें हम नॉमिनेट करते हैं, मतलब कि जो पीपल होते हैं वो इलेक्ट करके उन्हें नॉमिनेट करते हैं एल्डरमैन के लिए. नंबर 5, द सरपंच इज द हेड ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. इट इज़ फॉल्स. ओके, it can also be corrected in 2 ways. Again, सरपंच की जगह पे आएगा the mayor is the head of municipal corporation. Okay, please remember the mayor. Now the सरपंच is the head of a ग्राम पंचायत. Okay, उसको भी हम ऐसे करेक्ट कर सकते हैं. The सरपंच is the head of the ग्राम पंचायत, and here the mayor is the head of the municipal corporation. So a wrong sentence can be corrected in 2 ways. Okay, no problem. So these are all the exercise first and second. Now starting the question answers from number 3. Answer the following in one sentence. Answer the following questions in one sentence. What is Panchayati Raj system? Yes, what is Panchayati Raj system? So answer is, the Panchayati Raj system is a 3-tier system wherein the basic unit is the Gram Panchayat. पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर में है, मतलब कि हम कहेंगे कि 3 डिफरेंट डिवीजन में उन्हें डिवाइड किया है. उसमें से जो बेसिक होता है वो ग्राम पंचायत एज द विलेज लेवल, देन ब्लॉक लेवल एट द ब्लॉक समिति, एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद. देन क्वेश्चन नंबर 2, हु कैन फॉर्म द पंचायत समिति? हु कैन फॉर्म द पंचायत समिति? पंचायत समिति कौन बना सकता है? द फॉलोइंग में फॉर्म द पंचायत समिति. ये जो है वो पंचायत समिति बना सकते हैं. सरपंच ऑफ ऑल ग्राम पंचायत, सारे ग्राम पंचायत के सारे सरपंच. देन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रिप्रेजेंटिंग द ब्लॉक. जो तालुका को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉक को, उनके अंदर के एमएलए और एमपी. मैंने आपको एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या और इस अंदर मैं कहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन दिया है पार्ट 1 में. ओके, एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कहते हैं कि लोकसभा में जो इलेक्ट होता है वो. ओके, देन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि जो अपने स्टेट की विधानसभा में जो इलेक्ट होता है ना, उसे एमएलए कहते हैं. ओके, गॉट इट? सो दिस पर्सन्स कैन फॉर्म द पंचायती समिति. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्वच्छ भारत अभियान? व्हाट इज द स्वच्छ भारत अभियान? Swachh Bharat Abhiyan or the Swachh Bharat Mission is a nationwide campaign for cleanliness spearheaded by the government of India. Okay, it was launched in 2014. Please remember, अगर एडिशनल में लिखना हो तो it was launched on 2014. द बिग प्रोग्राम है, बहुत बड़ा. ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे हम कह सकते हैं कि प्रमोट किया है, लॉन्च किया है, और उसे हम कह सकते थे ग्रेट सक्सेस भी मिली थी. ओके, एट दैट टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन, what does a district collector do? What does a district collector do? एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या कर सकता है?
द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जिसे हम डेप्यूटी कमिश्नर भी कहते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डेप्यूटी कमिश्नर हेड्स द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट. She or he is the one who supervises the maintenance of land records and collection of land revenue. वो दो काम करता है. पॉइंट नंबर 1, वो जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी और सब जो तहसीलदार जो रखते हैं उसके ऊपर ये सुपरविज़न करता है. ओके, जो लैंड रिकॉर्ड्स जो बनाए गए हैं जिसे मेंटेन भी करना होता है. नंबर 2, वो ध्यान रखता है कि जो लैंड रेवेन्यूज होती हैं, मतलब कि जो हम टैक्स कहते हैं, जो इन फॉर्म कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू मीन्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, वो कलेक्शन हो रहा है ड्यू टाइम पे या नहीं होता है. ओके, उसकी ये जो वो दोनों जो ड्यूटी होती है वो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, ये है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, व्हाट इज द RTI? व्हाट इज द RTI? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट. So, the Right to Information Act RTI 2005 was passed with the objective of empowering citizens. Empowering citizens, जो citizens है उन्हें ज़्यादा पावर मिले, उस हिसाब से RTI एक्ट को लागू किया गया था 2005 में. It promotes transparency and accountability in the working of the government. ओके, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि जो हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं कि वहाँ पे 100% जो होता है वो क्लियर होता है कि भाई हाँ ये जो काम हुआ है उसकी ये खर्चा हुआ है, या फिर ये जो हम कहते हैं कि ग्रांट आई है उसके ऊपर से ये खर्चा हुआ है. और उसकी अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जो जवाबदेही होती है गवर्नमेंट की, वो वहाँ पे हमें प्रमोट करता है, मतलब कि हमें इंश्योर करता है. इट प्रोवाइड्स सिटीजन्स द राइट टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़. It helps to contain corruption and make democracy work for the people in true sense. इससे RTI से आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी की हम कह सकते हैं कि जानकारी आप ले सकते हैं. किसी भी हम कह सकते हैं कि पब्लिक अथॉरिटी जो होती है, ओके, और जो पब्लिक सर्वेंट जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे हम कहते हैं, वो जो भी काम करते हैं उसकी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं थ्रू दी RTI एक्ट. So it can assure a kind of, we can say, equality also, transparency and accountability in the working of the government. Yes, short answers are over. Then, okay, answer the following questions in brief. Number 1, what are the 3 levels of local self-governing bodies under the Panchayati Raj system? Discuss. So we have to discuss the 3-tier system of local self-government of Panchayati Raj system. So starting with the, yes, first one. The local self-governing bodies in rural areas work at the 3 levels, and all these 3 levels are called Panchayati Raj system. Number 1, at the lowest level, means village level, is the Gram Panchayat. The Gram Sabha elects the members of the Gram Panchayat. Seats are reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes. 1/3 of the total seats are reserved for women members of the village. 1/3 का जो मतलब होता है कि हर 3 में से 1, ओके, हर 3 में से 1 सीट किसकी होनी चाहिए? वुमेन की. और दूसरे जो स्केड्यूल्ड कास्ट जो SC है और जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो ST है, उनकी भी यहाँ पे रिजर्वेशन होती है. रिजर्वेशन का मतलब कि यहाँ पे उनके लिए जगह रखनी पड़ती है सीट्स में. ओके, प्लीज रिमेंबर, एट द विलेज लेवल. एट द मिडल लेवल, और वी कैन से ब्लॉक लेवल, जिसे हम तालुका भी कहते हैं, इस द पंचायत समिति और ब्लॉक समिति. ओके, अब ये जो वर्क करता है ना वो तालुका लेवल का करता है, लेकिन उसका जो हम कह सकते हैं कि वर्किंग वो सेम टू सेम ऑफ जिला परिषद का भी होता है. जो जिला का डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है वो सेम टू सेम होता है. एट द हाईएस्ट लेवल इज डिस्ट्रिक्ट इज द जिला परिषद. जो सबसे ऊपर होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है और वो है जिला परिषद. द जिला परिषद फॉर्म्स द टॉप टायर इन द पंचायती राज सिस्टम. इट फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. जनरली इट फंक्शंस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. जो जिला परिषद होती है वो जनरली 5 years के लिए हम कह सकते हैं कि काम करते हैं. ओके, सो दिस आर द 3 डिफरेंट, वी कैन से, levels in that rural self-governing bodies. At the lowest level, Gram Panchayat, at the Taluka level, Panchayat Samiti or Block Samiti, and at the district level, Jilla Parishad. Then, next question, what is the Nyay Panchayat? What is the Nyay Panchayat? Okay, Nyay Panchayat क्या है? That we have discussed. Yes, according to a press release by the Government of India on 26 August 2011,
The government proposed to establish Nyay Panchayats in every Gram Panchayat or a cluster of Gram Panchayats for providing a system of fair and speedy justice, both for civil and criminal, to the citizens at their doorsteps outside the formal judicial system. Okay, the whole answer is in one sentence. But what is that one? कि जो प्रेस रिलीज की गई थी गवर्नमेंट की कब 26 अगस्त 2011 में, जिसमें उन्हें सारे ग्राम पंचायत और क्लस्टर ऑफ ग्राम पंचायत जो थे उन्हें कहा गया था, प्रपोज किया गया था कि वो एक नया न्याय पंचायत बनाए, अच्छा सा इस्टेब्लिश करे, जिससे जो सारे जो विलेजेस होते हैं और जो हम कहेंगे कि स्मॉल विलेजेस होते हैं उनके अंदर के जो ये प्रॉब्लम्स जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो हो रही है, जो केसेस हो चुके हैं, सारे जो केसेस होते हैं मेनली लैंड के ऊपर ही होते हैं, जो फार्म जो होते हैं उसके ऊपर ही होते हैं, वो सारे केसेस के वेरी फेयर एंड स्पीडी उनका जस्टिस मिल जाए। हाँ, ये सबके लिए, जो सिविल होती है उनके लिए भी और क्रिमिनल है उनके लिए भी। अब ये जो हम कह सकते हैं कि जो जुडिशल सिस्टम है वो हमारी जो फॉर्मल जुडिशल सिस्टम है उसके आउटसाइड ये करने को कहा गया था। आउटसाइड मतलब कि जो हमारा चल रहा है, हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनसे अलग, प्लीज रिमेंबर, उनसे अलग, आउटसाइड दी फॉर्मल जुडिशल सिस्टम मीन्स न्याय यस पंचायत, इट इज कॉल्ड दैट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेड्स द जिला परिषद इन अ डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इट्स कंपोजिशन, व्हाट इज इट्स कंपोजिशन, वो कैसे बनाए जाते हैं और कौन जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट में हेड करता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द जिला परिषद इज ऑल्सो एन इलेक्टेड बॉडी। द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्ले अ रोल इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द परिषद आर द टॉप टू ऑफिस बियरर्स हु आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स, जो बनाते हैं उनमें से जो मेंबर्स होते हैं वो ये हैं। ए चेयरपर्सन्स ऑफ द पंचायत समिति, सारे जो पंचायती समिति के चेयरपर्सन होते हैं वो। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव मतलब एमपी और एमएलएस। मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमन, जो मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं अपने शेड्यूल्ड कास्ट को, एससी को, शेड्यूल्ड ट्राइब को, एसटी को, और वुमेन को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके मेंबर्स। ये सारे मेंबर मिलके क्या बनाते हैं, यस प्लीज रिमेंबर, जिला परिषद। एंड द टू हम कहेंगे कि टॉप टू द ऑफिस बियरर, जो सबसे ऊपर जो काम करते हैं वो दो होते हैं, एक है पहला प्रेसिडेंट और दूसरा बनता है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो हु हेड्स दैट वन जिला परिषद, सो वी कैन से प्रेसिडेंट। क्लियर। नंबर 4, ओके, नेम द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन अ सिटी। अब बात करेंगे लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन सिटी। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कैसे अलग है। जैसे कि हमारे रूरल सेल्फ गवर्निंग बॉडी में 3 टायर हैं, 3 लेवल्स हैं, ऐसे ही हमारे अर्बन में हम कहेंगे कि 3 लेवल्स हैं ऑफ द वर्किंग ऑफ दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो द लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज इन सिटी आर, वो भी 3 हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपलिटी, एंड सिटी काउंसिल और नगर पंचायत। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, जिसे महानगर पालिका भी हम कहते हैं। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड टाउन्स। इट प्रोवाइड्स एसेंशियल कम्युनिटी सर्विसेज सच एज द हेल्थ, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जो बेसिक हमारी जो जरूरत होती है वो वहाँ पे पूरी होती है। ये सारी जो बिग सिटीज़ होती है और बिग टाउन्स होती है उनकी डेवलपमेंट के लिए ये सब होता है, और वहाँ पे होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। उनकी पॉपुलेशन जो 10 लाख से ज़्यादा होती है उन्हें हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। नगर निगम, जिसे हम महानगर पालिका भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ओके, ऑल आर दिस द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। बिग सिटीज़, ओके प्लीज रिमेंबर द बिग सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनकी बात हो रही है। देन आफ्टर म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपलिटी, जिनकी हम कहेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से कम है। ओके, उन सारी एरियाज़ को हम जो स्मॉल टाउन या हम कहेंगे कि जो मीडियम और थोड़ी बिग सिटी होती है, ओके, उन्हें हम नगर पालिकास भी कहते हैं। द म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपलिटी ऑपरेट्स इन अ स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन्स दैट आर डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। Like the municipal corporation, several committees such as the Education Committee and Public Health Committee are formed to coordinate the working of the municipal council.
म्यूनसिपल काउंसिल को भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जैसे ही वार्ड की जैसे डिवाइड कर देते हैं बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के पर्पज से हम जो सिटी होती है, टाउन होते हैं ना, उसे वार्ड में से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, वार्ड को नंबर भी दिया जाता है एरिया वाइज। ओके, और सारे वार्ड में से हम कहेंगे कि एक एक जो मेंबर होता है वो इलेक्ट होके आता है। हाँ, उस वार्ड में से हम कह सकते हैं कि जितने भी चाहे उतने अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, उसमें। यस, हियर आई विल रिपीट अगेन। The municipal council or municipality operates in a small cities and towns that are divided into wards like the municipal corporation. Several committees such as the education committee and public health committees are formed to coordinate the working of the municipal council. म्यूनसिपल काउंसिल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए हम कहेंगे कि अलग अलग कमिटीज़ बनाई जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि एजुकेशन कमेटी, पब्लिक हेल्थ कमेटी, ओके, हम कहेंगे कि वाटर कमेटी ऑल्सो। तो ये जो सारी कमिटीज़ होती हैं वो अपना अपना काम अपने हिसाब से करती है। तो चेयरमैन कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ दिस कमिटीज़। जो चेयरमैन होते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन होते हैं, वो सारी जो ये कमिटीज़ होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करते हैं उनके सारे काम को। देन एट द थर्ड लेवल सिटी काउंसिल, जिसे नगर पंचायत कहते हैं। हियर द पॉपुलेशन इज ऑल्सो लेस देन वी कैन से 1 लाख, उससे हम कह सकते हैं कि थोड़ा आजू बाजू होता है। ओके, सिटी काउंसिल्स और नगर पंचायत आर फॉर्म टू गवर्न एरियाज विच आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। स्पेशली यहाँ पे जहाँ पे म्यूनसिपलिटी नहीं होती है उन्हें हम नगर पंचायत कहते हैं। ओके, बेसिकली याद रखना, जो सिटीज़ में म्यूनसिपलिटी नहीं होती उन्हें हम नगर पंचायत कहते हैं। ये ऐसे एरियाज है जो हम कहेंगे एक ट्रांजिशन पीरियड में, मतलब कि रूरल में से अर्बन में जा रहे हैं। ओके, वो डेवलप हो रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड, दिस एरियाज आर कॉल्ड अंडर डेवलपिंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। सो ऐसी जगह पे सिटी काउंसिल मतलब नगर पंचायत होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यस, मेंशन द फंक्शंस ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके फंक्शंस क्या हैं, मतलब उनके जो काम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। जो बिग सिटीज़ की हम बात करते हैं उनके। सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आर, नंबर 1, अरेंजिंग फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजिबल ऑफ गार्बेज। ओके, प्लीज रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अरेंजिंग फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, कचरा जो होता है उन्हें अरेंज करना और उसे कलेक्ट करके उसे डिस्पोज भी करना, वो उनकी जिम्मेदारी में आता है। मेंटेनिंग अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जो पानी जो स्टोर होता है रोड्स पे, ओके, खुले मैदान में, उनमें उन्हें ड्रेनेज सिस्टम पूरे सिटी की, जो बिग सिटी होती है वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छी हो, वो उनकी देख रेख में आता है। नंबर 3, एस्टेब्लिशिंग हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन देयर एरिया। ओके, जो हॉस्पिटल्स हैं और डिस्पेंसरी है उनके एरिया में एस्टेब्लिश हो, अच्छे से डेवलप हो और उनकी टेक केयर भी की जाए, वो उनकी हम कहते हैं कि जिम्मेदारी होती है। एंड नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एंड बिल्ड एंड मेंटेन स्कूल्स एट ऑल लेवल्स। जो डेथ और बर्थ का जिसे हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन होता है वो करते हैं, और सारी जो स्कूल्स होती है उन्हें मेंटेन करना पड़ता है सारे लेवल्स में। ओके, वट एवर दैट वी कैन सी द सिटी लेवल, ओके, फिर स्मॉल सिटी और जो टाउन होते हैं उसमें, और हम उससे कहेंगे उससे भी छोटे जो स्मॉल टाउन्स होते हैं उन सारी जगह पे जो स्कूल्स होते हैं उन्हें मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी होती है। ओके, सो दिस आर दी सम फंक्शंस ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। लेकिन उनका जो बेसिक जो हम कहेंगे कि फंक्शन है वो प्रोवाइड करना, जो हम कह सकते हैं कि वाटर, जो हम कह सकते हैं पोर्टेबल वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो, फिर जो उनका जो गार्बेज होता है उसका डिस्पोजेबल करना, कलेक्शन करना, वो उनकी मेन ड्यूटीज़ में से आता है। यस, आंसर इन ब्रीफ इज ओवर। नाउ वी विल स्टार्ट दी लॉन्ग आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। नंबर 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया में उसकी कोई सिग्निफिकेंस है, उसकी कोई हम कह सकें महत्व है, ओके, कोई इम्पोर्टेंस है। सो यस, व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर, ओके, आई टोल्ड यू कि उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर वो नहीं होता तो हम कह सकते हैं ये सब कुछ नहीं हो सकता। जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल है वो वहाँ पे कॉप अप नहीं कर सकते। ओके, एट हम कहेंगे कि वेरी स्मॉल विलेज लेवल, टाउन लेवल एंड सिटी लेवल। ओके, सो यस, द आंसर इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है, बहुत ही बड़ी।
Number 1, local people know their problems well and hence can solve them better by taking part in the local governance themselves. जो लोकल पीपल वहाँ के होते हैं, वहाँ के उनको लोकल प्रॉब्लम्स मालूम होती है बहुत ही अच्छी तरह से, तो वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इलेक्शन में पार्ट लेके जीत के फिर वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस जनरेट्स अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड इन्वॉल्व्स देम इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. जो लोकल लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, उससे हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेशन और उन्हें इन्वॉल्व करता है किसमें, डिसीजन मेकिंग सिस्टम में. ओके, उसकी जो प्रोसेस जो होती है पूरी डिसीजन मेकिंग, जो सबसे बड़ा होता है वो डिसीजन होता है कि आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, ओके, किस हिसाब से, ओके, किस एरिया में किस जगह पे आप अपना डिसीजन लेते हैं. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंबर हु इज इलेक्टेड. Number 3, local self-government provides opportunities to the elected representatives to acquire training and experience in administration. अब जो हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होती है, इधर रूरल लेवल और अर्बन लेवल, उन दोनों में हम कह सकते हैं कि जो लोकल पीपल होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो हम कह सकते हैं कि अंदर जो लोग होते हैं, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उनकी ट्रेनिंग लेने की और एक्सपीरियंस करने की एडमिनिस्ट्रेशन की, कि सच में जो सिस्टम है वो कैसे काम करती है, दोनों लेवल पे, रूरल लेवल पे और अर्बन लेवल पे. फिर आगे जाके वो हम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल में या हम कहेंगे कि सेंट्रल लेवल में वो अपना आगे अपना कैरियर जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना हो तो. देन फोर्थ वन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइटन्स द बर्डन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द पीपल एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बर्डन होता है, जो भार होता है ना, वो हल्का कर देता है. ओके, इट लाइटन्स, और वो एक लिंक होती है. जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो लिंक है पीपल की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ. ओके, वो एक लिंक है, कड़ी है हम कहेंगे. सो दैट्स वाई द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ओके, इन इंडिया. देन सेकेंड वन, डिस्क्राइब द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत के मेन फंक्शंस कौन कौन से हैं वो हमें डिस्क्राइब करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ और कंपलसरी फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत आर एज फॉलोज. उनके जो एसेंशियल हम कहेंगे या हम कहेंगे कि जो कंपलसरी फंक्शंस है ग्राम पंचायत के, वो कौन कौन से हैं. नंबर 1, कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन विलेज रोड्स, वेल्स, ड्रेन्स एंड टैंक्स. जो मेन हम कहेंगे कि जो रोड होते हैं, पानी होते हैं, जो कुएँ होते हैं, मतलब पानी के जो वेल्स होते हैं, और टैंक जो होते हैं, पानी की टैंकियाँ होती हैं, उन्हें बनाना, कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन भी करना. ओके. नंबर 2, इम्प्लीमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. जो खुद अलग अलग कम्युनिटीज़ होती है उनके जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना. देन कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स एंड फीस. कलेक्ट टैक्सेस, टोल्स एंड फीस. इट इज़ द वी कैन से द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत. अलग अलग प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं, टोल्स होते हैं और जो फी होती है वो कलेक्ट करनी सिटीजन से. मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स इन द विलेज. विलेज के अंदर जो हम कह सकते हैं जो बर्थ लेता है और जो डेथ जिनकी होती है उनकी रिकॉर्ड मेंटेन करना. प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल. देन सप्लाई गुड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड प्रोवाइड बेटर इरीगेशन फैसिलिटीज. सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे जो फार्मर के लिए आता है कि इरीगेशन सिस्टम और उनकी जो हम कहेंगे कि सीड्स जो होती हैं और फर्टिलाइजर्स को प्रोवाइड करने की बात यहाँ होती है. प्रोवाइड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स. जो रोड्स जो बन चुके हैं और जो स्ट्रीट्स बन चुके हैं उनके ऊपर अब इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब कि वहाँ पे लाइट आ जाए. ओके, स्ट्रीट लाइट भी आ जाए, घर के अंदर तो लाइट आ ही जाए. ओके, ऐसी उन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है. प्रोवाइड बेसिक एंड नेसेसरी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज. जो हेल्थ का इशू जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो विलेज लेवल में होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ी हॉस्पिटल नहीं होती है. तो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है वो आ जाती है उनके जो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है उसके ऊपर आ जाती है. तो उन्हें हम कह सकते हैं कि मेंटेन करना, वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्राम पंचायत की आ जाती है. ओके. देन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन पब्लिक बिल्डिंग्स. बहुत सारी अलग अलग पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं. ओके, जैसे कि हम कहेंगे कि पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उन्हीं बात करें. पब्लिक मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हम कहेंगे कि जो सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो बिल्डिंग्स होती है, जिसे हम कहते हैं कि ग्राम पंचायत होती है, उनकी भी खुद की बिल्डिंग होती है. डेयरीज़ होती है, जो नेशनल डेयरीज़ होती है वो भी
ओके, उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स आती है, पब्लिक बिल्डिंग्स। ओके, उन्हें कंस्ट्रक्ट भी करना है और मेंटेन भी करना है ग्राम पंचायत को। सुपरवाइज द वर्क ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स सच एज द पटवारी, द लेखपाल, द पुलिस कांस्टेबल एंड द विलेज चौकीदार। ये सारे जो लोग हैं गवर्नमेंट जो सर्वेंट हैं, ओके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका ये सारा जो काम है उन्हें सुपरवाइज करना किसका काम है? ग्राम पंचायत का, एट विलेज लेवल। बट ओके, प्लीज रिमेंबर। देन नेक्स्ट वन इज बिल्ड स्कूल्स एंड सुपरवाइज प्राइमरी एजुकेशन। जो विलेज लेवल की सबसे बहुत बड़ी जो उनकी हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है स्कूल में उसके प्राइमरी एजुकेशन है वो दिया जाए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है फ्री एजुकेशन, ओके, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। जो 14 ईयर्स तक का जो हमारा एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी है, तो वो सबसे ज़्यादा होता है विलेजेस में। ओके, बहुत सारे विलेजेस हैं हमारे कंट्री में, तो सारे विलेजेस के जो ग्राम पंचायत है उनकी ये सबसे पहली हम कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जो स्कूल से उन्हें अच्छा बनाए रखे और उसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन है वो उसको सुपरवाइज करे, मतलब कि उसकी जो लेवल है उसकी क्वालिटी है वो अपग्रेड हो, मतलब आगे बढ़े। ओके, दैट आर दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ अ ग्राम पंचायत इन अ विलेज लेवल। ओके, देन नेक्स्ट वन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ हिंदू सक्सेशन और अमेंडमेंट एक्ट 2005। जो हिंदू सक्सेशन मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया था उसका हमें एक्सप्लेन करना है इम्प्लीकेशन कि वो क्या है पहले समझना है और फिर उसका इम्प्लीकेशन कैसे करना है वो समझना है। सो लेट्स स्टार्ट दी हिंदू सक्सेशन और अमेंडमेंट एक्ट 2005। व्हाट इज दैट? अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन मीन्स अमेंडमेंट एक्ट 2005, उनके अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, आफ्टर द डेथ ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली द प्रॉपर्टी इज टू बी इक्वली शेयर्ड बिटवीन हिज वाइफ, सन्स as well as daughters. The law imparts full and equal rights to daughters. This change marks an important milestone in ensuring equality in society, although it is applicable only amongst the Hindu community. However, it has to be implemented properly by creating awareness among the women both in rural areas and urban areas so that they can establish and claim their legal right. जो हमारा हिंदू सक्सेशन और अमेंडमेंट एक्ट जो है वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए ही एप्लीकेबल हैं, और इस एक्ट के तहत अगर जो हेड का फैमिली का जो हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली, अगर उसकी किसी कारणवश डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली जो हेड होता है ना उसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी फैमिली के अंदर इक्वली शेयर होती है। प्लीज रिमेंबर द वर्ड इक्वली शेयर बिटवीन हिज वाइफ, सन्स एज वेल एज डॉटर्स। उनके वाइफ के, उनके सन्स के और उनके डॉटर्स के हम कहेंगे कि अंदर वो इक्वली शेयर होती है। वी आर लिविंग इन अ इंडियन सोसाइटी, सो इंडियन सोसाइटी में जो हेड होता है ना वो मेल ही होता है ऑलमोस्ट। ओके, अभी हम कहेंगे कि थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड आया है कि अभी हम कह सकते हैं कि जो हेड होता है ना वो फीमेल भी हो सकती है। ओके, वो पूरे परिवार को हम कह सकते हैं फैमिली को चलाती होती है। सो हेड ऑफ द फैमिली इन इंडियन सोसाइटीज आर मेल पर्सन्स ओनली। ओके, दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। और जो एक्ट है वो 2005 में हम कहेंगे कि लागू किया गया था और उस एक्ट के तहत ऐसा प्रोविज़न दिया गया है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यस व्हाट आर दी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोन एज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो इलेक्ट हो कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें काउंसिलर्स कहते हैं। हाउ आर दे इलेक्टेड, वो कैसे इलेक्ट होते हैं? व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस, उनकी जो टर्म होती है ऑफिस की वो कितने की होती है? ओके, सो हियर देर आर 3 क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस अबाउट दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर ओनली। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नोन एज द काउंसिलर्स। यस, दे आर कॉल्ड काउंसिलर्स। जो इलेक्ट होकर आते हैं उन्हें काउंसिलर कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो मेंबर्स। द मेंबर्स ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इलेक्टेड बाय एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द सिटी फॉर द टर्म ऑफ 5 years। जो एडल्ट सिटीजन होते हैं उस सिटी के, उनके द्वारा वो चुने जाते हैं, मतलब इलेक्ट किए जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 years के लिए। बिसाइड दिस इलेक्टेड मेंबर्स देर आर सम नॉमिनेटेड मेंबर्स और टू द कॉर्पोरेशन हु आर नोन एज एल्डरमैन।
ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसके अलावा भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि नामांकित करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं, उन्हें कहते हैं एल्डरमैन। ये सारे एल्डरमैन होते हैं रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ऑफ द सिटी। दे आर इलेक्टेड फ्रॉम फ्रॉम अमॉन्ग द रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स ऑफ द सिटी। वो सिटी के रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स में से एक होते हैं। ओके, अमॉन्ग का मतलब उसके अंदर से एक होते हैं। ओके, कौन? यस, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्डरमैन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं उन्हें काउंसिलर्स कहते हैं, और वो 5 ईयर की टर्म के लिए इलेक्ट होके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लॉन्ग आंसर्स, व्हाट आर द वेज इन विच सिटीजन्स में एक्सप्रेस देयर ग्रीवेंस इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट और लोकल सिविक बॉडीज। कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं सिटीजन्स जिसमें वो अपना जो दुख होता है वो जाहिर कर सके, एक्सप्रेस कर सके, अगर वो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट के या लोकल सिविक बॉडीज़ के से वो सेटिस्फाइड नहीं है। ओके, तो यस, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिससे आप अपना जो सिटीजन्स जो होते हैं वो अपना ग्रीवेंस, ओके, अपनी जो दुख हैं, प्रोटेस्ट हैं, वो जाहिर कर सकते हैं। दे कैन एक्सप्रेस। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो गिवन द राइट ऑफ दिस काइंड ऑफ राइट इज़ गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। So there are several ways in which citizens may express their grievance or protest in case they are not satisfied with the government and local civic bodies. तो grievance क्या है? तो एक protest होता है। protest का मतलब कि एक विरोध होता है। ओके, जिसे हम कहते हैं कि आप किसी भी बात से अगर आपको फेयर लग नहीं रहा, कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है और आप उनका विरोध करना चाहते हैं, तो उसे हम ग्रीवेंस कहते हैं। ओके, जो आक्रोश कहते हैं, आक्रोश, ग्रीवेंस का हम दूसरा भी मतलब निकाल सकते हैं कि आक्रोश जो होता है गवर्नमेंट के कुछ हम कहेंगे कि नियम के ऊपर, कुछ एक्ट के ऊपर, और कुछ डिफरेंट हम कहेंगे कि उनकी सिस्टम के ऊपर भी। तो कौन कौन से डिफरेंट वे हैं? नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम होल्डिंग धरनास, धरना के अलावा पीपल कैन फाइल केसेस इन स्पेशल कोर्ट्स सच एज द लोक अदालत। ये जो लोक अदालत की स्पेशल जो हम कहते हैं कि बेंचेस होती है, उसमें वो स्पेशल कोर्ट्स जैसे कि लोक अदालत जैसे स्पेशल कोर्ट्स में वो ऐसे केसेस को फाइल कर सकते हैं। धरना जो है वो हम कहेंगे कि बहुत ही ट्रेडिशनल हो गए हैं। ओके, जो धरना करते हैं, फिर हम कहेंगे कि आंदोलन करते हैं, साथ बैठे रहते हैं। ओके, हम अनशन पर जिसे बैठते हैं, अनशन का मतलब कि भूखे पैसे बैठना, उसे अनशन भी कहते हैं। धरना भी उसका ही नेम है। ओके, जैसे गांधी जी करते थे, सत्याग्रह करते थे, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना वो अब ट्रेडिशनल हो गए हैं। अब उनका हम कहेंगे कि ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होती है, लेकिन अब जो है वो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं। फिर हम कहेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोविज़न दिए गए, प्रावधान दिए गए हैं। ओके, सो हम ये यूज़ करते हैं। ओके, पीपल कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट्स, दे आर एंटाइटल्ड टू यूज़ द राइट टू इंफॉर्मेशन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज़। अगर आपको हम कहेंगे कि किसी भी बाबत में गवर्नमेंट ने किसी भी काम में अनजस्टिस जैसा फील हो रहा है, तो आप RTI कर सकते हैं। RTI जो है वो एक्ट ही बनाया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स के लिए, टू एम्पावर द सिटीजन्स। तो वो अगर हमें जानना है कि भाई इस हम कहेंगे कि डिपार्टमेंट में, इस जगह पे हमें ऐसा लग रहा है कि करप्शन हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो आप उसकी RTI मंगवा सकते हैं। मतलब RTI का मतलब होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप उस काम के बारे में जो भी पूछना चाहते हैं कि क्या ग्रांट है, किस साल में हुई थी, किसने की थी, कितना खर्चा हुआ, वो सब, जिसे हम ऑडिट भी कहते हैं। ओके, ये सारे जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसे एक्सपोज कर सकते हैं पब्लिक के सामने। Then people may also sign petitions and send them to the municipal councillors or write to newspaper in order to be heard. अब पिटीशन से वो हम साइन करके म्यूनिसिपल काउंसिल्स को दे सकते हैं। ओके, जो इलेक्ट हुए हैं हमारे वार्ड से। फिर अगर वो भी ना करना हो या फिर वहाँ से भी हमें सॉल्यूशन ना मिले, तो हम दूसरा एक जो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे अभी न्यूज़पेपर दिया गया है। ओके, अब न्यूज़पेपर के अलावा हम यहाँ पे जो व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, ऐसी जो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडियाज़ की जो हम कहेंगे कि साइट्स है, वेबसाइट्स हैं, उसका ज़्यादा उपयोग होने लगा है। अब जो न्यूज़ जो आती हैं उससे पहले हम कहेंगे कि जो न्यूज़ होती है वो स्प्रेड हो जाती है हमारी सारे सोसाइटी में बिकॉज ऑफ दिस सोशल एप्स। ओके, सो न्यूज़पेपर में देने से जो जिन्हें सुनाई देना चाहिए उनके लिए हम कह सकते हैं कि कंप्लेंट की फॉर्म में ओके हम न्यूज़पेपर में ऐसी कॉलम्स देते हैं। ओके, सो ये अलग अलग वे हैं। और भी दूसरे हम कह सकते हैं कैंपेन्स होते हैं। ओके, आंदोलन होते हैं। हाँ, कभी कभी वायलेंट भी हो जाते हैं आंदोलन। तो ये सारे वेज हैं जिसमें सिटीजन्स अपने जो ग्रीवेंस हैं गवर्नमेंट की तरफ वो एक्सप्रेस कर सकते हैं।
So students, this is all about the explanation of all the exercise, starting with the MCQs, true false, answer in one sentence, then answer in brief, and answer in detail. So this is all about the explanation of our chapter number 24 in three different parts. So I hope you learn everything and you understood everything about chapter number 24, local self government, rural and urban administration. Thank you. Goodbye.